Friends, welcome to my channel Chaubeji Educator. So friends, as you can see on my screen that today I am going to explain you about the topographical survey sheets. Okay, and the sheet number is G43S7 and G43S10. Okay, so friends, this particular video this will be going to means a series of videos, okay, in which I am going to explain you practice sheets, means topo sheets from 1 to 10. Okay, some of the topo sheets will be of topo sheet number G43S7 and some will be of G43S10. Okay, and obviously these topo sheets means solutions will help you to score marks in the upcoming ICSE examination, means board examination. And obviously first I am going to show you which kind of topo sheet you will get in your examination. Okay, and with that particular topo sheet, I will give you some information about the sign and symbols, okay, which you will get on the topo sheet in examination. So friends, let's get started. So friends, this is the sample topo sheet which you are going to get in your examination. Okay, so obviously I'm not saying that this same means as it is topo sheet you are going to get in your examination, but this is the sample topo sheet. Okay, so let me show you what information you will get on this topo sheet. So here you can see that there are three types of scales depicted here. Okay, one is this one, is the linear scale, and this one is the representative scale. And here you can see that it is written 2 centimeter to 1 kilometer. That means that this is the statement or verbal scale. Okay, as you all have studied in your theory as well as in practical, that there are three types of topo sheet. Okay, three types of scale. Okay, three types of scale, pardon. One is the representative fraction scale, and this is also known as universal scale because this particular scale is free from any units. So second is the linear or graphical scale. So this is the linear or graphical scale. And third one is the statement or verbal scale. Okay, and obviously here it is written that contour interval is 20 meters. Means, so whatever your contours, here you can see that brown color, these are the contours, and their interval means each contour is drawn with the a gap of 20 meters. Okay, and below that you are going to get, here there are some informations also, relative height, then some tanks, or even means diggy. What is the diggy? It is a tank which is used for collection of water. So these all informations you are going to get on your topo sheet. Then here are the some symbols. Okay, you can see, let me zoom out, zoom in. So how you will read this symbol? First one is for first, and second one is for second, third one is for third. For example, these all are representing the expressway highway. First is with toll, means toll plaza. Second one is bridge, and third one is with distance tone. Okay, then third next is the roads. Okay, metal road, then means according to their importance, this is the main highway, then sub highway according to their importance. Then this is a roads double carriageway. Then again means according to their importance, some roads are state highways, some are district highways. Okay, so according to their importance, you can see here. Then unmetal roads, then cart track, pack track, then here is the pack track with footpath. So here also you can see that some streams. Okay, streams. So this is the perennial stream, this is the black color dry stream. Then dams, red one is the masonry, then black one is the rock filled, and third one is the obviously weir, WEIR, weir. So second one is also known as earthwork. Okay, then river, means these all sign and symbols you are going to get on your topo sheet. Okay, so you need not to worry about this, but first and obviously important thing is that you should know how to read this. Okay, how to read these symbols. Okay, for example, here one hospital. So first one is the dispensary, then next one is the veterinary hospital, third one is the
obviously again this is also has hospital. Okay, so according to their importance, okay, means hospital, then means dispensary, veterinary, then blue color. So obviously all are having different importance. This triangular is the triangulated height, then spot height. Okay, then this is the symbol for police station. Okay, then this is for aerodrome, then helipad. So these all are these symbols are representing obviously state or state boundaries. Okay, so this is for demarcated and this is for undemarcated. Demarcated means it is already means no dispute is there, and here if it is not demarcated, so you will not going to get any uh, means any pillars or anything. Then district administration means district divisions. So friends, uh, my purpose to show this sample topo sheet, that you should know what informations you will get on your topo sheet in examination, and what you should learn. Okay, so what you should learn, you should learn how to identify these symbols. Okay, what is the meaning of these symbols, because you will get uh, a symbols name and symbols, but if you don't know the meaning of these symbols, obviously you will be in trouble in your examination. Okay, now let me explain you in Hindi. So फ्रेंड्स, ये एक सिंपल टोपो शीट है जिसमें आपको जो है ये सब इंफॉर्मेशंस मिलने वाली हैं। जो 3 टाइप के यहाँ पे स्केल दिए गए हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल, देन लीनियर स्केल, एंड दिस वन इज़ द वर्बल और स्टेटमेंट स्केल। और इसके जस्ट नीचे आपको बहुत सारे साइन एंड सिंबल्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो साइन एंड सिंबल्स को आपको रीड करना आना चाहिए, अदरवाइज आप फिर आपके लिए टोपो शीट यूजलेस हो जाएगी पूरी तरह से, ठीक है ना। तो ये अलग अलग जो हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें डिस्पेंसरी भी है, सिंपली ये हॉस्पिटल के लिए है, ये वेटनरी हॉस्पिटल के लिए है, ठीक है। तो ये अलग अलग साइन एंड सिंबल्स हैं, यहाँ पे कुछ सर्वे ट्रीज वगैरह सब उनके भी और साइन एंड सिंबल्स दिए गए हैं, ठीक है। BM मतलब है तो बेंचमार्क होता है, बेंचमार्क, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ, तो आप मेरे चैनल को विजिट करके वो सब कुछ देख सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, मैं आपको अब मेन जो है टोपो शीट का जो है एक्सप्लेनेशन जो शो करने वाला हूँ, मतलब ऑब्वियसली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैं जो पहला टोपो शीट है उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको टोपो शीट्स का जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना होगा, ठीक है, मैं हिंदी में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँ, उनको ज़्यादा बेहतर से समझ में आता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलरली इस सीरीज़ के अंदर जो मैं टोपो शीट सीरीज में जो है 1 to 10 मीन्स टोटल 10 टोपो शीट्स जो एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें कुछ G43S7 सीरीज़ की होंगी, कुछ G43S10 सीरीज़ की होंगी। तो अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए टोपो शीट्स रिलेटेड और आप 10 out of 10 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो कोई भी वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा कंप्लीट जो है वो सेकंड बाय सेकंड वीडियोस को अच्छे से वॉच करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा फ्रेंड्स जो पहला टोपो शीट है उसका नंबर जो है वो G43S7 है, ठीक है। और इसमें जो ईस्टिंग्स हैं वो 36 to 46 हैं, नॉर्थिंग्स जो 85 to 95 हैं। और इसमें एक एक करके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मैं चलिए आपको वो टोपो शीट शो करता हूँ, ठीक है, जिसको हमने डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स, वो टोपो शीट है, ठीक है, जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये टोपो शीट है, इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। तो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 36 से लेके यहाँ 46 तक है, ठीक है। और जो इसके जो नॉर्थिंग्स हैं वो देखिए, यहाँ से नॉर्थिंग्स भी यहाँ पे देख सकते हैं 85, 86, ठीक है। तो ये नॉर्थिंग्स हैं और इधर की तरफ जो हैं वो सारी की सारी ईस्टिंग्स हैं, और इधर की तरफ जो इंक्रीज हो रही हैं वो सब नॉर्थिंग्स हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गिव द 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। बट क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम जो 2023 में एग्जाम होगा उसमें 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस नहीं आने वाला है, तो हम इनका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ही निकालेंगे। तो द ओवरहेड टैंक इन द ग्रिड स्क्वायर 3988, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि इसमें पहले से ही 3988 इसका 4 फिगर गिवन है, ठीक है। बट हम एक बार देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सपोज द ओवरहेड टैंक या फिर द छतरी इन द ग्रिड, मतलब इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम तो देखते हैं कि हमारे पास पहले ओवरहेड टैंक कैसा दिखता है, ठीक है।
तो ओवरहेड जो टैंक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए, कि ओवरहेड टैंक कैसा दिखाई देता है। ओके, यहाँ पे देखिए वैसे लिखा भी है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार जूम करता हूँ सो दैट आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये है ओवरहेड टैंक, ठीक। ओवरहेड टैंक का ये सिंबल है, तो इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसका अगर हमको लिखना है 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलरली हमारे पास ये जो लाइन है, ये 88 की लाइन है, ठीक है। और इधर की तरफ अगर देखेंगे तो 39 है, ठीक है, क्योंकि ये 40 की है, ठीक। इसका आंसर क्या होगा? 3988, इट इज़ ऑलरेडी गिवन, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन था हमारे पास छतरी, ठीक है। तो छतरी का भी हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है छतरी, ठीक है, जिसका हमको 6 फिगर बताना था, बट ऑलरेडी क्योंकि 3794 गिवन है, तो इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि 3794 कैसे है। तो थोड़ा ऊपर की तरफ, इसमें एक्चुअली ऊपर वाली साइड में नहीं है गिवन, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए हैं सारे। तो ये देखिए, ये जो है हमारे पास यहाँ पे है 94, तो ये मतलब ये जो लाइन है ये 94 की लाइन है, ठीक है। और इधर की तरफ अगर मैं चलता हूँ, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलरली लाइन है ये 38 है, ये 38 है, यहाँ पे ये 38 है। ऑब्वियसली ये लाइन जो है वो 37 की लाइन है, ठीक। तो इसका मतलब कि अगर हम इसका 4 फिगर निकालना चाहते हैं, सपोज़ कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि ये है 37 और ये है 94। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 3794। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कन्वेंशनल साइंस लोकेटेड एट द पॉइंट्स द 6 फिगर रेफरेंस टू विच आर। तो इसमें आपको ये बताना है, ये 6 फिगर को देख के, कि वहाँ पे कौन कौन से साइन लोकेटेड है, ठीक है। तो पहला है 4-1। अब इसमें देखिए, इसमें हमको एक्चुअली में ढूंढना कैसे है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है आपका? 4 फिगर। तो स्टार्टिंग के 2 और ये मिडल वाले 2, मतलब 4-1 और 9-0, यानी कि 4-1 ईस्टिंग और 9-0 नॉर्थिंग को हम देखेंगे। और इसमें देखेंगे 4-4 ईस्टिंग एंड ऑब्वियसली 8-6 नॉर्थिंग, ठीक है। तो 4-1-9-0 सबसे पहले हम देखेंगे, और उसके अंदर देखेंगे कि कौन सा आपको एक चेक्ड लोकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा सिंबल है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ चलते हैं। 4-1 क्या देखना है हमको? 4-1-9-0, ठीक है। तो 4-1 किधर है? देखिए इधर की तरफ 4-1 है, ठीक। ये है 4-1 और 9-0, मतलब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। 9-0 किधर है? तो 4-1-9-0, तो ये जो लाइन है ये है 4-1 की, और 9-0 इधर की तरफ है, ठीक। तो इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 4-1-9-0 के अंदर एक सर्वे ट्री है, सर्वे ट्री। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक, सर्वे ट्री है इसके अंदर, ठीक है, 4-1-9-0 के अंदर, ठीक। और जो दूसरा है उसके अंदर, तो दूसरा फ्रेंड्स जो था 4486, ठीक है। तो 4486 को देखते हैं कि 4486 किधर है। तो यहाँ पे है 44 एंड देन 86, ठीक है। तो 4486 के अंदर एक्चुअली क्या है ना, 4 फिगर है, तो हमको एग्जैक्टली मतलब 6 फिगर में एग्जैक्टली ये पर्टिकुलरली है 4486 का, ये वाला इसके अंदर। अब इसके अंदर हमको ध्यान से वो पर्टिकुलरली जो 6 फिगर है, ठीक, उसको लोकेट करके और चेक करना होगा कौन सा सिंबल, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं। इसमें ओवरहेड टैंक भी है, इसमें पोस्ट ऑफिस भी है, इसके अंदर टेम्पल का भी है, मतलब बहुत सारे इसके अंदर सिंबल्स हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय ईस्टिंग 40 एंड 44, नॉर्थिंग 86 एंड 90, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, तो अगर 40 से लेकर 44 के बीच में अगर हम नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करते हैं तो 4 है, और अगेन 86 से 90 के बीच में जो बॉक्सेस हैं वो भी 4 है, ठीक है, 4। तो एक जो हमारे पास स्क्वायर ग्रिड होता है उसका जो एरिया होता है वो 1 होता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल बॉक्सेस कितने हो गए हमारे पास? टोटल बॉक्सेस हो गए 4 × 4 मतलब 16, और एक का कितना था? 1 स्क्वायर किलोमीटर, तो 16 का कितना आ गया? 16 स्क्वायर किलोमीटर। यू कैन सी इन दिस
पर्टिकुलर क्वेश्चन 16 स्क्वायर किलोमीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली इन विच डायरेक्शन डज द बलराम नदी फ्लो एंड विच बैंक ऑफ द मेन रिवर डज इट ज्वाइन। ठीक है, तो हमको मतलब बलराम जो नदी है उसका फ्लो डायरेक्शन देखना है। तो चलिए देखते हैं कि बलराम नदी जो है उसका फ्लो डायरेक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स हमारे पास देखते हैं कि बलराम नदी कौन सी है। ठीक, तो ये देखिए ये बलराम नदी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा भी है बलराम नदी। ठीक, अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो जो बलराम नदी है उसके अंदर यहाँ पे एरोज भी लगे हुए हैं। ठीक, यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे एरो लगा हुआ है यहाँ पे, यानी कि ये बता रहा है कि जो वाटर है वो इधर से इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पानी किधर जा रहा होगा, नीचे की तरफ ही जा रहा होगा इसका। तो फ्रेंड्स इसका जो वाटर है वो किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अगर हम ध्यान देंगे, अगर ऐसे करके हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा होता है नॉर्थ, देन साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो रिवर है वो कहाँ से किधर फ्लो कर रही है, साउथ वेस्ट से, सॉरी साउथ ईस्ट से ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, और अब इसमें एक और क्वेश्चन था कि ये मेन रिवर जो है, ये जो मेन रिवर है, ये वाली मेन रिवर है, इसमें कौन से बैंक, मतलब उसके लेफ्ट बैंक या राइट बैंक में। तो पहले हमको ये पता करना होगा कि इस रिवर का लेफ्ट और राइट बैंक किधर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी नीचे की तरफ एरो लगा हुआ है, मतलब रिवर का जो एक्चुअल फ्लो है मेन, वो नीचे की तरफ ऐसे है, पानी नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इसका क्या हुआ, राइट बैंक, और ये हो गया नीचे की तरफ इसका लेफ्ट बैंक हो गया। मतलब ये बलराम नदी किधर की तरफ ज्वाइन कर रही है, लेफ्ट बैंक की तरफ। ओके, देन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ब्लैक ब्रोकन लाइन इन 4087। तो चलिए देखते हैं कि 4087 किधर है। ठीक है, तो 40 और 87, ठीक है, ब्लैक ब्रोकन लाइन्स इन 4087। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक ब्रोकन लाइन्स देखेंगे तो ये हैं, ये ब्लैक ब्रोकन लाइन्स हैं, ये भी ब्लैक ब्रोकन लाइन्स हैं। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, आइदर ये डिसअपीयरिंग स्ट्रीम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, या जो स्ट्रीम्स ऑलरेडी अंडरग्राउंड जा चुकी हैं। ठीक है, ये ड्राई स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है, बट अगर डॉटेड लाइन आ जाए इसके अंदर, ठीक है, देखिए अलग अलग जगह पे जो डॉटेड लाइन है, ये सारे के सारे डिसअपीयरिंग जो स्ट्रीम्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ब्लैक कर्व लाइन्स हैं, ब्लैक कर्व लाइन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, इन विच ग्रिड स्क्वायर इट इज़ इन 4291। तो देखते हैं 4291 में क्या है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारा जो है 42 ईस्टिंग है, ऊपर की तरफ चलते हैं 91 में देखते हैं 4291, यानी कि ये जो पर्टिकुलरली ये सब जो है, ठीक, ये जितने भी हमारे पास, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रोकन ग्राउंड को, किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ब्रोकन ग्राउंड। ओके, ये ब्रोकन ग्राउंड को रिप्रेजेंट करती हैं। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई टू लैंडफॉर्म्स शोन बाय कंटूर्स इन ग्रिड स्क्वायर 4388। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि 4388 में 4388, तो ये रहा हमारा 43 यहाँ पे, और ऊपर की तरफ चलते हैं 4388, मतलब कि ये वाला, ये नीचे से 43, ये है 4388। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर से दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट जो है रिज है, और अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो बाकी के कंटूर लाइंस हैं ये ऑलमोस्ट थोड़ा सर्कुलर पैटर्न भी बना रही हैं, यानी कि कोनिकल ही हो सकता है। तो इसमें वाटर डिवाइड भी हो सकता है। वाटर डिवाइड का मतलब क्या है, देखिए वाटर पानी इधर की तरफ भी जा रहा है और ये जो स्ट्रीम से इधर की तरफ भी जा रही है। ठीक है, मतलब सेंटर में क्या है, एक वाटर डिवाइड है, तभी वाटर जो है वो वाटर का फ्लो दोनों डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में हो रहा है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप दो लिख सकते हैं इसके अंदर। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज मीन्ड बाय द स्केल ऑफ ए मैप। सो द स्केल ऑफ ए मैप इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप टू द कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ओके, कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द सर्फेस और कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ओके, देन जो नेक्स्ट है कि इसके अंदर व्हाट इज द स्केल ऑफ द मैप प्रोवाइडेड टू यू, मतलब इस मैप में स्केल क्या दिया गया है। तो ऑलरेडी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1:50,000 इन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल, 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर स्टेटमेंट स्केल। ठीक है, और एक लीनियर स्केल यानी कि जो ग्राफिकल स्केल वो भी बना हुआ है। तो रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर जो लीनियर स्केल और, तो ये देखिए इसके अंदर एक हमारे पास ये स्केल है जो दिया गया है, इसमें तीनों स्केल हैं, इसको लीनियर स्केल बोलते हैं। ठीक है,
और इधर वाला जो है इसको स्टेटमेंट स्केल बोलते हैं, और ये है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल। द 3 टाइप्स के स्केल ऑलरेडी इट इज़ गिवन ऑन द मैप। देन फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि व्हाट डू यू द फॉलोइंग डेनोट, ब्लैक वर्टिकल लाइन रनिंग अलोंग विद द 42 ईस्टिंग। तो जनरली जो ब्लैक वर्टिकल लाइंस होती हैं, अगर वर्टिकल हैं तो वो होती हैं हमारे पास लॉन्जिट्यूड, और अगर हॉरिजॉन्टल हैं तो वो लैटिट्यूड होती हैं, लैटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन के आर एस इन ग्रिड स्क्वायर 4485। तो देखते हैं कि 4485 में आर एस कहाँ लिखा है, 4485। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर एस, तो ये रेलवे, देखिए ये रेलवे ट्रैक है, ये वाला ये रेलवे लाइन है। ठीक, तो इसका मतलब ये आर एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेलवे स्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आर एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेलवे स्टेशन। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 12 आर इन द ग्रिड स्क्वायर 3785। ठीक है, एंड इसी के साथ एक और क्वेश्चन है कि 220 इन द ग्रिड स्क्वायर 4487। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देखेंगे इस मैप में बहुत सारे आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो 12 आर इन ग्रिड स्क्वायर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेटिव हाइट ऑफ द सैंड ड्यून इज 12 मीटर्स। अब देखते हैं 4487 में क्या है, 4487। ठीक है, तो इधर की तरफ 44 है और 87। ठीक, तो 4487 में 220, तो एक्चुअली में ये ब्राउन कलर का है। ठीक है, ये देखेंगे तो ये ब्राउन कलर का है, मतलब ये कंटूर की एक वैल्यू है, कंटूर की। मतलब ये है कि ये 220 इस कंटूर वैल्यू की मीन सी लेवल से हाइट है। ठीक है, जिस भी उसको मतलब लैंडफॉर्म को डिनोट कर रहा है उसकी हाइट कितनी है, 220 मीटर्स। और मैं आपको बताया था कि इसके अंदर बहुत सारे सैंड ड्यून्स हैं। थोड़ा इसको मैं जूम आउट करता हूँ तो ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये सब के सब सैंड ड्यून्स है। ये जो ब्राउन ब्राउन कलर के ऐसे ऐसे बने हुए हैं ना, ये सब के सब सैंड ड्यून्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, सैंड ड्यून्स हैं इसके। ठीक, तो सैंड ड्यून्स में अलग अलग जगह पे देखेंगे तो ये 9R 10R देन 16R। ठीक, ऐसा। तो ये क्या है, सैंड ड्यून्स की रिलेटिव हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सैंड ड्यून्स के रिलेटिव हाइट को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। So friends, this will be the last question in this particular video, and in next video I will explain other topo sheets. Okay, so last question is blue line in the Balram Nadi. Name the feature blue line. So obviously that blue line is the thin water channel. Okay, because surrounding if you'll see that is the dry places, but the blue line is representing the perennial channel or water channel. और नेक्स्ट क्या है, ब्राउन पैच इन ग्राउंड स्क्वायर सॉरी ग्रिड स्क्वायर 4189। ठीक है, तो पहले तो आपको मैं 4189 दिखा देता हूँ सो दैट हम उसको भूल ना जाएं। 41, ये देखिए यहाँ पे 41 है और 8788 देन 89। ठीक है, तो ये 4189 जो ब्राउन के हैं सारे के सारे क्या हैं, सैंड ड्यून्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बलराम नदी के अंदर ये देखिए, बलराम नदी के बाकी साइड में देखेंगे तो ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी वाटर नहीं है। ठीक है, ये ड्राई है, बट ये जो ब्लू कलर की लाइन है इट इज़ शोइंग दैट कि ये एक वाटर चैनल है। ठीक है, ड्राई स्ट्रीम के अंदर एक वाटर चैनल है। ठीक है, सो फ्रेंड्स दैट इज़ ऑल अबाउट this particular topo sheet number 1. In next videos I will explain topo sheets from topo sheet 2 to 10. So keep watching my videos for more information about the topo sheets and related questions. Okay, so if you like this video, okay, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, सो दैट वो बेनिफिट उठा सकें। और कोई भी अगर आपको क्वेरीज रहती है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फ्रेंड्स आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, ओके, एंड आई एम ट्राइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट। सो अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ मैंने इसमें ऐसा बता दिया है जो हो सकता है आंसर गलत है या कुछ ऐसा है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन उसको और करेक्ट करूँगा, या फिर कुछ भी अगर आपका सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, डेफिनेटली मैं इंप्रूव करूँगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर